Good morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your studies properly. So children, we will start today's English grammar class with a discussion of the password. Our password for today is nomads. So as you know that I have picked this word from our EVS chapter, that is chapter number 8, houses we live in. So what is the meaning of this word children? Nomads are members of group of people who move from one place to another in search of food and grazing land for their animals. सो नोमैड्स क्या होते हैं? उस ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं फूड की, वाटर की तलाश में, और उन्हें अपने एनिमल्स को घास चराने के लिए ग्रेजिंग लैंड चाहिए होता है. सो वो इसलिए मूव करते रहते हैं. दे डोंट स्टे परमानेंटली एट वन प्लेस, सो उन्हें नोमैड्स कहा जाता है. सो दैट वाज अबाउट आवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास. Children, as you know that we are doing chapter number 4, nouns, singular and plural. So, in today's class, we will be first revising all the rules that we have discussed so far, and then we will do exercise B and C that are on page number 25. And after that, we will be revising question answer number 1 and 2 of lesson 2, The Fly. Its test is scheduled on 28th August. So, we will start with the rules first. So children, as you know that we are doing chapter number 4 in our English grammar book, that is nouns, singular and plural. So we will be revising quickly all the rules that we have discussed so far. So this is rule number 1. Nouns that end with S, SS, SH, CH or X. So we add ES to form the plural of the noun. जो noun word end होते हैं S, SS, SH, CH और X से, सो उनके लिए हम क्या ऐड करते हैं? वी यूज़ ES. सो द मेन वर्ड जो कि है सिंगुलर वर्ड है, उसके एंड में हम ES अप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं टू मेक इट इनटू प्लूरल. सो S वर्ड है बस, बसेस. डबल S वर्ड है क्लास, क्लासेस. SH वर्ड है ब्रश, ब्रशेस. CH वर्ड है बेंच, बेंचेस. X वर्ड है, we have two X words, box, boxes, fox, foxes. So children, if a noun ends in a consonant Y, drop the Y and add IES to its singular form in order to change it to its plural form. अगर कोई noun word end हो रहा है Y से, तो हम उसे drop कर देंगे और IES add कर देंगे उसे plural में convert करने के लिए. So we have been given word is HOBBY, hobby. Hobby में क्या करेंगे? It is ending with Y, so we will remove this Y and then in its place we will add IES. तो हम IES add करेंगे. The plural form of hobby will be hobbies. Next is PON by pony. Pony है, we will remove Y को remove करेंगे and we will add IES to PON. PON के साथ हम IES add कर देंगे. Same are the cases with कॉपी, ट्रॉफी, हॉबी, कैंडी, इन सब के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे. ऐसे ही कोई भी वर्ड है लास्ट में Y है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट क्या है? Y है, लेकिन Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो हियर यू कैन सी B कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, अगेन B, D. सो Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम Y को रिमूव करेंगे और IES ऐड कर देंगे. So children, this is rule number 3. Nouns ending in F and FE form their plural by changing the F and FE into VES. ऐसे noun जो F या FE से end हो रहे हैं, उनका plural कैसे हम frame करेंगे? We will remove F and FE. या तो F होगा या FE होगा और उसकी place पर we will add VES. So we have some examples. LEAF, leaf. We have F at the end. So what we will do? We will remove F and then in its place we will add VES. So LEAVES. KNIFE, knife. Knife में FE है, so we will remove FE and then KNI के आगे हम VES add कर देंगे. This is wife, WIFE, so we will remove FE and we will add VES. WIVES. So next is WOLF, wolf. F we will remove and then we will write WOLVES.
This is L-I-F-E, life. We will remove F-E and then L-I-V-E-S will be the plural. So children, this is next rule. If the Y is preceded by a vowel, it is left unchanged. We just add S to convert into plural. अगर किसी भी नाउन वर्ड में एंड में तो Y है, बट Y से पहले वाला लेटर जो वॉवल है, सो Y चेंज नहीं होगा, Y को हम रिमूव नहीं करेंगे, और व्हाट वी विल ऐड, सिंपली हम ऐड करेंगे S. सो वी हैव सम एग्जांपल्स. बॉय, बॉय में Y है एंड में, बट Y से पहले क्या है, वॉवल. O इज वॉवल. सो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट रिमूव Y, हम Y रिमूव नहीं करेंगे, BOYS हम प्लूरल बना देंगे. सेम इज विद डोंकी, DONKEY, Y से पहले क्या है, E वॉवल, सो डोंकीज हो जाएगा. KEY की है, Y से पहले E वॉवल है, सो वी विल सिंपली ऐड S. सेम एज विद ट्रे, ट्रे में A वॉवल है, Y से पहले. मंकी में अगेन इट इज़ E जो कि वॉवल है. डे में A वॉवल है, जर्नी में E है, सो वी विल सिंपली ऐड S. सो चिल्ड्रन, देयर आर सम वर्ड्स दैट डू नॉट फॉलो एनी रूल. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रूल फॉलो नहीं करते हैं जब हम उन्हें प्लूरल में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए हैं. वी हैव मैनी मोर वर्ड्स लाइक दैट. इनके जैसे बहुत से वर्ड्स हैं, तो हम डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उन्हें ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो दिस इज़ MAN, मैन. मैन मीन्स ओनली वन, एक पुरुष के लिए कहा गया है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, देन वी यूज दिस वर्ड MEN, मैन. ये इसका प्लूरल फॉर्म है. मैन इज़ द सिंगुलर फॉर्म, मैन है प्लूरल फॉर्म. सो A यहाँ पर है, और A के इंस्टेड ऑफ A इट इज़ यूज्ड E. नेक्स्ट इज़ वुमेन. वुमेन के लिए भी वही मैन जैसा ही है प्रोसेस. WOMAN, वुमेन. इट इज़ अबाउट फॉर वन. ये एक के लिए है, महिला, एक महिला. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, देन वी यूज़ दिस वर्ड WOMEN. एक से ज़्यादा हैं तो महिलाएं, तो वी विल यूज़ दिस वर्ड WOMEN. दिस इज़ फॉर वन फुट. फुट क्या होता है, ओनली वन, एक पैर. हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे फीट. टूथ, एक दांत. टीथ, मोर देन वन. ऑक्स, एक बैल, मोर देन वन ऑक्सन. चाइल्ड, एक बच्चा, मोर देन वन चिल्ड्रन. माउस, एक चूहा, मोर देन वन माइस. गूस, एक बर्ड होता है, मोर देन वन इज गीस. सो चिल्ड्रन, सम सिंगुलर नाउन डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन दे बिकम प्लूरल. कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन भी हैं जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते. मीन्स सिंगुलर भी वही वर्ड होगा और प्लूरल फॉर्म में भी वही वर्ड होगा. जैसे कि शीप, डियर, मूस, एयरक्राफ्ट, फिश. सो इस तरह के ये वर्ड्स हैं कि जो अपने प्लूरल फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में वही रहते हैं. जब वो सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं, तब हम वर्ब के साथ हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में. अगर हमें सिंगल एक वर्ड दिया है तो हम नहीं उसे पहचान पाएंगे, बट वो सेंटेंस में दिया गया है तो हम अगर वर्ड के साथ इज़ है या आर है तो हम उसे समझ सकते हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल में. चिल्ड्रन, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक्स, पेज नंबर 25. सो वी विल डू एक्सरसाइज B and C टुडे. एक्सरसाइज B, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म हमें लिखने हैं. सो ये वर्ड्स हैं और हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे और वी विल बी डिस्कसिंग कि विच रूल इज़ टू बी अप्लाइड, कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है. सो फर्स्ट वर्ड इज़ FLY, फ्लाई. हेयर यू कैन सी Y है एंड में, और बट Y से पहले क्या है, L, जो कि कॉन्सोनेंट है. सो हम क्या करेंगे, हम Y को रिमूव करेंगे और उसके Y को रिमूव करके IES ऐड करेंगे. सो हम Y को रिमूव करेंगे तो FL हमारे पास होगा एंड देन वी विल ऐड IES. सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्लाई विल बी फ्लाइज. फ्लाई क्या होती है, एक मक्खी हो सकती है, एंड व्हेन इट इज़ मोर देन वन तो हम फ्लाइज लिखेंगे. सो नंबर 2, WOMAN, वुमेन. वुमेन क्या है, एक महिला. सो ये वो वर्ड है चिल्ड्रन जहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होता है. सो हम किस तरह से इसे फॉर्म करेंगे, दिस इज़ फॉर वन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, तब हम WOMEN लिखेंगे.
सो जैसे मैन में मैन और मेन होता है, वैसे वुमेन और वुमेन होता है। विमेन भी बोलते हैं हम, WOMEN, विमेन। एट नंबर 3, THIEF, थीफ। थीफ क्या है? चोर। हियर यू कैन सी एंड में F है, तो F के लिए क्या रूल अप्लाई होता है? जब किसी वर्ड के एंड में F या FE होता है तब हम उन्हें रिमूव करते हैं और VES ऐड करते हैं। सो वी विल रिमूव F को रिमूव करेंगे, देन हमें क्या हमारे पास क्या बचेंगे लेटर्स? THIE। सो THIE एंड देन VES, थीव्स। एक चोर, मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा है तो थीव्स। नंबर 4, WIFE, वाइफ। वाइफ है, हियर यू कैन सी FE है एंड में, सो वी विल रिमूव FE एंड VES अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो WIVES, वाइफ्स। एट नंबर 5, LORRY, लॉरी। लॉरी क्या होती है? एक ट्रक को भी बोल सकते हैं, एक कैरेज होता है सामान कैरी करने के लिए। सो Y है एंड में और Y से पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। सो विच रूल वी हैव टू अप्लाई? IES वाला, तो वी विल रिमूव Y एंड देन LORRIES, लॉरीज। एट नंबर 6, CHILD, चाइल्ड। ये भी वो अनयूजुअल है जो कि रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं हम। सो चाइल्ड मीन्स वन, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन वी विल राइट चिल्ड्रन। Child is meant for one only. When we are talking about more than one, then we will write children or speak with children. Next is at number 7, cherry. Cherry as you can see end में Y है और Y से पहले क्या है? Consonant. So cherry का plural क्या होगा children? Cherries. We will remove Y and then we will add IES, CHERRIES, cherries. At number 8, GOOSE, goose. गूज है, ये भी वो वर्ड है, तो हम गूज के लिए क्या प्लूरल फॉर्म करेंगे? गीज। गूज मीन्स वन, मोर देन वन, गीज। एट नंबर 9, माउस। माउस मतलब चूहा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन वी विल राइट इट एज माइस। ये भी वही है जिसमें हम रूल अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एट नंबर 10, हूफ। हूफ क्या होते हैं? एनिमल्स के जो पैर होते हैं, उन्हें हम जो आगे का हिस्सा होता है उसे हूफ कहते हैं। सो इट इज़ फॉर वन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन तब हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव दिस F एंड देन वी विल ऐड VES, हूव्स। और इसका एक और भी प्लूरल हो सकता है, हम ये भी लिखते हैं, ये दोनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं, HOOFS। सो फॉर हूफ वी विल ऐड write its plural as hooves or hoofs. Next is at number 11, tooth. Tooth क्या है? मीन्स एक दांत, और ये भी वो अनयूजुअल है जिस पे रूल अप्लाई नहीं होता है, हम कोई रूल फॉलो नहीं करते। सिंपली टूथ इज़ फॉर वन एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, टीथ। टीथ उसका प्लूरल होगा। नेक्स्ट इज एट नंबर 12, लोफ। लोफ क्या होता है? हम ब्रेड के जो उसको भी हम बोल सकते हैं लोफ है। LOAF, लोफ। यहाँ पर F है एंड में, सो व्हाट वी विल डू? F को रिमूव करेंगे एंड देन वी विल ऐड VES, LOAVES, लोफ्स। सो चिल्ड्रन, दिस इज एक्सरसाइज C। आइडेंटिफाई द एरर्स। हमें एरर्स मतलब जो गलतियां हैं उन्हें पहचानना है। राइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली, फिर इन्हें करेक्टली लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये आपके लिए एक लिखा गया है, ये इस सेंटेंसेस का मीनिंग है। बट वी विल डू दिस एक्सरसाइज ऑन द बुक इटसेल्फ, बुक पर ही करेंगे। सो हम सिंपली जो एरर है उसे अंडरलाइन करेंगे और देन जो राइट वर्ड होगा, जो राइट सिंगुलर या प्लूरल होगा, वो हम साइड में लिख देंगे। सो इट हैज़ टू बी डन इन द बुक इटसेल्फ। सो द बेबीज इज क्राइंग। बेबीज क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, बट इज नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन वी यूज आर। तो आर नहीं है यहाँ पर, बट हमें किसे चेंज करना है? बाकी वर्ड्स को नहीं, हमें जो सिंगुलर या प्लूरल उन्हें कंसिडर करना है। सो जो नाउन वर्ड है वो क्या है? बेबीज। नाउन क्या है? यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, हम इसे बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वी विल राइट इट बेबी, द बेबी इज़ क्राइंग। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आएगा। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, देयर आर 10 एग इन द बास्केट।
बास्केट में 10 एग हैं, पर एग नहीं होगा राइट वर्ड, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन तब हम उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एग का प्लूरल फॉर्म क्या होगा चिल्ड्रन? एग्स, एग, एग्स। सो वी विल अंडरलाइन दिस एरर, एरर को हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ हम राइट वर्ड लिख देंगे। एट नंबर 3, ट्रीज शेड लीफ इन ऑटम। ट्रीज अपनी जो पत्तियां हैं वो झाड़ देते हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ के सीजन में। ऑटम सीजन में अपनी पत्तियां वो शेड करते हैं। सो यहाँ लीफ है, ट्री के एक लीफ नहीं होती है चिल्ड्रन, ट्री के तो बहुत सारी लीव्स होती हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन तो हम लीफ को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? एफ को रिमूव करेंगे एंड VES ऐड करेंगे, देन अवर प्लूरल फॉर्म विल बी LEAVES। सो सिंपली हम इसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लीव्स लिख देंगे। एट नंबर 4, द चाइल्ड आर फ्लाइंग काइट्स। आर है तो इसका मतलब है ज़्यादा, एक से ज़्यादा हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ जो नाउन वर्ड है वो चाइल्ड है, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे? चाइल्ड की जगह हम इसे प्लूरल में चेंज करेंगे। तो प्लूरल क्या है चाइल्ड का? चिल्ड्रन। सो अवर करेक्ट सेंटेंस कैन बी द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो चाइल्ड को अंडरलाइन करेंगे और चिल्ड्रन लिखेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वो पतंगे उड़ा रहे हैं। सो एट नंबर 5, द मैंगो आर वेरी स्वीट। अब आर है, इट मीन्स एक से ज़्यादा, बट एक मैंगो तो एक ही हो सकता है। सो हम क्या करेंगे? मैंगो को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो नाउन वर्ड है मैंगो, उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल बी मैंगोज़। अब हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, द मैंगोज़ आर वेरी स्वीट। जो मैंगोज़ हैं वो बहुत मीठे हैं, क्योंकि हमें आर मिला है। आर मीन्स कि जो एक से ज़्यादा होता है, उसके लिए हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सो द मैंगोज़ आर वेरी स्वीट। एट नंबर 6, द गूज आर स्विमिंग इन दैट पॉन्ड। जो गूज हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं, या गूज स्विमिंग कर रहा है उस पॉन्ड में, बट यहाँ पर हमें आर दिया है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। हमें इस नाउन वर्ड को ही कंसिडर करना है। तो गूज की जगह हम क्या लगाएंगे? इसका प्लूरल फॉर्म, दैट इज गीज। सो द गीज आर स्विमिंग इन दैट पॉन्ड। जो गीज हैं वो उस पॉन्ड में स्विमिंग कर रहे हैं। आई फेल डाउन एंड हर्ट माई लेफ्ट फीट। मैं गिर गया या गिर गई और मेरा जो लेफ्ट वाला पैर था वो उस पर चोट लगी। सो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, आपका जो लेफ्ट पैर है या राइट है तो वो एक ही है, और एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फूट। सिंगुलर हम फॉर्म यूज़ करेंगे फूट, क्योंकि ये फीट क्या है? प्लूरल फॉर्म। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी लाइक दैट, आई फेल डाउन एंड हर्ट माई लेफ्ट फूट। एट नंबर 8, द माउस आर स्क्वीकिंग इन द स्टोर रूम। जो माउस है वो शोर मचा रही हैं, स्क्वीक कर रहे हैं, उनका साउंड होता है माउस का स्क्वीक। सो माउस आर है, आर मीन्स एक से ज़्यादा है, तो हम इसे इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, द माइस आर स्क्वीकिंग इन द स्टोर रूम। सो ये वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे, नाउन को, क्योंकि ये इसमें एरर है और यहाँ हम उसकी प्लेस पर माइस लिखेंगे। एट नंबर 9, माई मदर ब्रॉट 2 बैग ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सो 2 है तो इट इज़ मोर देन 1, तो बैग का क्या होगा? प्लूरल, बैग्स। क्या राइट वर्ड रहेगा? बैग्स। सो द सेंटेंस कैन बी लाइक दैट, माई मदर ब्रॉट 2 बैग्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मेरे मम्मी मार्केट से 2 बैग्स वेजिटेबल्स का लेकर आए। सो एट नंबर 10, द वॉच सोल्ड इन दैट शॉप आर ऑफ गुड क्वालिटी। वॉच, वॉच क्या है? घड़ी। सो वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड, क्योंकि शॉप में जो वॉच की शॉप होगी तो वहाँ पर एक से ज़्यादा होंगी, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल, वॉचेस। द वॉचेस सोल्ड इन दैट शॉप आर ऑफ गुड क्वालिटी। आर हमें दिया गया है, तो ये क्या है? जो वॉचेस हैं उस शॉप में वो गुड क्वालिटी की हैं। एट नंबर 11, द बॉय आर प्लेइंग इन द पार्क। आर है तो वट इज़ द एरर हियर? बॉय। बॉय यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका प्लूरल फॉर्म होगा। सो द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। एट नंबर 12, द मैन इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ मैन का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इज़ भी है, तो इज़ का मतलब है इट इज़ मेंट फॉर वन। सो वो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है,
सो हम इस पर यहाँ पर सिंगुलर इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे. द मैन, MAN मैन इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर. सो चिल्ड्रन, ये आपकी चैप्टर नंबर 4 था, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल. सो आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. सो दिस वर्क टू बी डन इन द बुक इटसेल्फ, बुक में ही करना है, ये नोटबुक में नहीं करना है. So what we are going to do today, children, we will revise the question answer number 1 and 2 of lesson number 2. So children, yesterday I gave you English reader homework that you have to learn question answer number 1 and 2 of lesson number 2, the fly. So we are going to revise these question answers. Our question number 1 is, why was the tiny animal sad? छोटा एनिमल उदास क्यों था? The answer is, द टाइनी एनिमल वाज सैड, छोटा एनिमल उदास था, बिकॉज क्योंकि इट फॉरगॉट इट्स नेम. इट किसके लिए यूज़ हुआ है? टाइनी एनिमल के लिए. और इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है? वो भी, लेकिन ये दूसरी फॉर्म में यूज़ हुआ है. द टाइनी एनिमल वाज सैड बिकॉज इट फॉरगॉट इट्स नेम. वो अपना, इट्स किस लिए है? अपना, खुद का, स्वयं का. द टाइनी एनिमल वाज सैड बिकॉज इट फॉरगॉट इट्स नेम. छोटा एनिमल इसलिए उदास था क्योंकि वो अपना नाम भूल गया था. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. हु हैड बिग आइज एंड शाइनी विंग्स? किसके बड़ी बड़ी आंखें और चमकीले पंख थे? सो डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन, आपको याद है किसके थे चमकीले पंख और बड़ी बड़ी आंखें? टाइनी एनिमल के. सो द टाइनी एनिमल हैड, छोटे एनिमल के, बिग आइज एंड शाइनी विंग्स, छोटे एनिमल की बड़ी आंखें और चमकीले पंख थे. So you have to prepare these 2 question answers for upcoming English test. आपको ये दोनों प्रिपेयर करने हैं. So children, I am sure कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और each one of you, आप सभी को टेस्ट अटेम्प्ट करना है. So that's all for our English class today. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.